चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि वे कोर्ट के फैसलों और पेंडिंग मामलों पर बार एसोसिएशन के सदस्यों की टिप्पणी करने की हालिया प्रवृत्ति से परेशान हैं। दरअसल शुक्रवार 5 अप्रैल को सीजेआई नागपुर बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वकीलों को राजनीति के हितों से ऊपर उठना चाहिए और उनकी मौलिक वफादारी अदालतों और संविधान के प्रति होनी चाहिए। इस दौरान सीजेआई ने देश के संवैधानिक मूल्य और न्याय को बनाए रखने में बार एसोसिएशन की भूमिका पर जोर दिया। इसी भाषण के दौरान वकालत के दिनों के उन्होंने अपने कुछ पुराने किस्से भी सुनाए। उन्होंने कहा कि वकीलों को संविधान और अदालत को सर्वोपरि रखना चाहिए और अपने राजनीतिक विचारों को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। The bar as an institution is essential to preserve judicial independence, constitutional values and the dignity of the court. In a vibrant and argumentative democracy like ours, most individuals have a political ideology or inclination. To quote Aristotle, human beings are political animals. Lawyers are no exception. However, for members of the bar, one's highest loyalty must not lie with partisan interests, but to the court and the constitution. In many ways, it is an independent bar that is a moral bulwark to protect the rule of law and constitutional governance. इसी भाषण में उन्होंने आगे बार एसोसिएशन को लेकर एक चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसलों और लंबित मामलों पर बार सदस्यों की टिप्पणी करने की एक प्रवृत्ति देखी जा रही है जो चिंताजनक है। इसलिए ये भी कहा कि एक संस्थान होने के नाते हमारे कंधे मजबूत हैं। हम तारीफ और आलोचना दोनों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बार एसोसिएशन से उनकी क्या उम्मीदें हैं उसे लेकर भी नाराजगी जाहिर की। Judgments of our constitutional courts are the culmination of rigorous proceedings, thorough legal analysis, and a commitment to constitutional principle. But once the judgment is pronounced, it is public property. As an institution, our shoulders are broad. We stand ready to receive both praise and criticism, bouquets and brickbats, be it through journalistic pieces, political commentary, or on the social media. But as members and office bearers of bar associations, with years of training and experience, you must distinguish yourself from the layperson while reacting to judgments of the court and engaging in legal discussion. Of late, I have been very disturbed by the tendency of members of bar associations to comment on cases which are pending before the court and of commenting on judgments delivered by the court. You are first and foremost officers of the court, and the dignity and truth in our legal discourse is in your hands. As members of the bar, it is incumbent upon you to communicate the judgments of the court to the public, utilizing platforms such as opinion pieces in newspapers, media appearances, and public lectures. कई बार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होने के बावजूद कोर्ट के फैसलों तक जनता की पहुंच नहीं हो पाती, क्योंकि हर कोई कोर्ट की वेबसाइट से जजमेंट निकालने, देखने, पढ़ने में सक्षम नहीं होता। एक संभावना ये भी रहती है कि कोर्ट की कानूनी भाषा भी हर आम आदमी के समझ नहीं आ पाती। ऐसे में अगर कोई व्यापक असर वाला फैसला हो तो उसे लोगों को समझाना बेहद ज़रूरी होता है। इसके लिए कानून के एक्सपर्ट की मदद ली जा सकती है। वकील कानून के रूप में कुछ ऐसे एक्सपर्ट होते हैं जिनका रोज़ाना मिलना जुलना कोर्ट और आम जनता दोनों से होता है। इसलिए कोर्ट में हो रही अहम चीज़ों को जनता तक पहुंचाने के लिए वकील सबसे उचित जरिया हो सकते हैं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ये वकीलों की जिम्मेदारी है कि वे जनता तक अदालतों के फैसलों को सरल रूप से पहुंचाए। In this sense, the bar has the potential to act as a bridge between the court and the citizens. In fulfilling your role, the bar can effectively translate complex legal concepts and precedents into accessible language for the public, fostering a deeper understanding of our constitutional values and the true purport of our judgments. यहाँ आपको एक बात और बताते चले कि कुछ दिनों पहले ही 28 मार्च को देश भर के करीब 600 सीनियर वकीलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को एक चिट्ठी लिखी थी। इसमें न्यायपालिका खतरे में है और इस पर तमाम तरह के दबाव डाले जाने के दावे किए गए थे।
दबाव डालने वाले कथित प्रेशर ग्रुप की भी बात इसमें की गई थी, जिसके बाद इस चिट्ठी पर जमकर राजनीति भी शुरू हो गई थी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी, जबकि विपक्ष ने भी इसे अपनी तरह से मुद्दा बनाया था। इसके अलावा तारीखों में थोड़ा और पीछे चले तो 14 मार्च को भी एक चिट्ठी लिखी गई थी। वो वक्त तब का था जब इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी तल्ख अंदाज में सुनवाई चल रही थी। तभी इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा पर मचे हंगामे के बीच सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदिश सी अग्रवाल ने भारत के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखा था। उसमें उन्होंने सीजेआई से अपील की थी कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड पर अपने फैसले की समीक्षा करे। इससे पहले आदिश अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में 12 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के तहत रोक लगाने की मांग की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने खुद को उस पत्र से अलग कर लिया था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस पत्र की निंदा भी की थी। उस पत्र में आदिश अग्रवाल ने यह भी लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट को खुद ही ऐसे फैसले नहीं देने चाहिए जिनसे संवैधानिक गतिरोध पैदा हो। अब एक ज़रूरी सूचना, लोकसभा चुनाव के लिए लल्लन टॉप की टीम जो है कवरेज के लिए मैदान पर पहुंच रही है। अगर आपको भी अपने इलाके में लगता है कुछ खास जिसे दर्शकों तक पहुंचाना चाहिए, तो हमें सब्जेक्ट में मेरी सीट कवर करो लिखकर उस सीट के बारे में chunav@lallantop.com पर आप भेज सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी जो भी राय है इस खबर पर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी शेख नावेद। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।